سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ایک جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب صرف سنی مسلمان وفادار رسول دیں، کوئی دیوبندی دشمن رسول غدار رسول میرے سلام کا جواب نہ دے۔ جناب حضرات، آپ حضرات اس گفتگو کو پورا ملاحظہ فرمائیں۔ مولانا طفیل صاحب اہل سنت والجماعت سنی حنفی بریلوی ہیں، اور دوسرا دیو کا بندر، دیو کا پجاری، دیو کی بندگی کرنے والا، بابا رام دیو کا بڑا محب، بابا رام دیو کا چاہنے والا۔ بہرحال یہ دیو کی بندگی کرنے والے، دیو کی پوجا کرنے والے لوگ کیسی دوگلی پالیسی کھیلتے ہیں۔ ان کے یہاں کہنا کچھ کرنا کچھ، دیوبندیوں کا دھرم دھرم نہیں چونچو کا مربع ہے۔ دیوبندی لوگ، دیوبندی لوگوں کی جو مثال ہے وہ بالکل سیدھی سادی سمپل سی ایک وہ مثال ہے جو بزرگ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ بہرحال آپ حضرات اس گفتگو میں آپ ملاحظہ فرما لیں گے، انہوں نے اعلیٰ حضرت کو کافر مانا اور کہا کہ میں اعلیٰ حضرت کو معاذ اللہ بدترین کافر مانتا ہوں۔ مولانا طفیل صاحب قبلہ نے کہا کہ آپ اگر مولانا احمد رضا خان صاحب قبلہ کو اگر آپ کافر مانتے ہیں تو ان کو جو مسلمان مانے اس پہ کیا حکم آئے گا؟ بولے میں اعلیٰ حضرت کو مسلمان مانتا ہوں، میرے اوپر شریعت کا کیا حکم آئے گا؟ بولے آپ بھی کافر ہوں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا صرف میں ہی کافر ہوں گا یا زید و بکر جو بھی مانے، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر وہ اعلیٰ حضرت کو مسلمان ہی مانتا ہو وہ بھی کافر ہوگا یا نہیں، یا صرف میں ہی کافر ہوں گا ان کو مسلمان ماننے کی وجہ سے؟ تو گھوم گیا، یہاں پہ کلر چینج کرنے لگا، کلر بدلنے لگا۔ بہرحال آپ اس گفتگو کو پورا سنیں اور ان نجدیوں کے حق میں جو بھی آپ لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، شیئر کریں اور اپنے تمام ساتھیوں میں، رشتہ داروں میں، پریوار میں بھیجو، اور تمام دیوبندیوں کے پاس بھیجو کہ دیوبندیوں کا دھرم دھرم نہیں چونچو کا مربع ہے۔ یہ دوگلی پالیسی کھیلتے ہیں، دوگلی پالیسی چلاتے ہیں یہ لوگ۔ ہلو، 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 ہاں ہلو، جی تو خیر رضوی صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں لیکن میں نے ٹائم دیا کہ میں ابھی بات نہیں کر پاؤں گا، میں نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ کر کے مجھے کہیں جانا ہے۔ میں نے محترم کو واٹس ایپ پہ میسج کر دیا تھا، تہذیب صاحب کو، ٹھیک ہے؟ اب جی آپ کس وقت بات کر رہے ہیں؟ کریں گے؟ اب جس وقت بات کروں گا، آپ کون بول رہے ہیں پہلے اپنا تعارف کرائیں۔ بس آپ یہ بولیے کہ آپ بات کس وقت کرو گے؟ پہلے اپنا نام بتائیں گے نا محترم۔ میرا نام محمد طفیل رضوی آپ نے تو جان لیا، آپ اپنا نام تو بتائیں گے نا محترم۔ میں اپنا نام اسی وقت بتاؤں گا جس وقت آپ سے گفتگو کروں گا۔ آپ وقت بتا دو کہ آپ مجھ سے ابھی گفتگو تو کر رہے ہیں، میں نے تو اپنا نام بتا دیا۔ میرا نام محمد طفیل رضوی، میں لکھنؤ یو پی سے رہنے والا ہوں، اور پھر میں ابھی اس وقت ممبئی سے بول رہا ہوں۔ میں ساری چیز، سارا ڈیٹیل میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ آپ اپنا نام بتانے سے کیوں بھاگ رہے ہیں محترم، یہ بتائیے۔ مجھے نہ بھاگنا ہے نہ مجھے کسی کو بھگانا ہے، مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ آپ وقت بتائیے مجھے، کس وقت آپ سے ٹائم میں بات کرنے کے لیے اپنا وقت بتاؤ۔ ارے میرے کو جب جیسے ٹائم مل جائے گا میں بات کر لوں گا، بات اس کی نہیں ہے۔ پہلے اپنا نام بتائیے۔ جس وقت آپ کو ٹائم ملے گا نا اس وقت مجھے کال کرنا، میں اسی وقت اپنا نام، اپنا ڈاٹا، نام کیوں نہیں بتا رہے یار؟ نام کیوں نہیں بتا رہے ہو؟ اپنا نام تو بتاؤ، نام بتاؤ تو پھر بات کریں گے۔ نام بتاؤ۔ محترم اتنا سن لو، میں اہل سنت والجماعت علماء دیوبند سے تعلق رکھنے والا ہوں، ٹھیک ہے؟ نام کیا ہے؟ میرے نام سے آپ کو کیا لینا دینا؟ تو میرے نام، اچھا یہ بتائیے کیا آپ کے نام سے لینا دینا؟ میں کیا آپ کو کیسے مخاطب کروں گا یہ بتائیے۔
आप मुझे भाई करके आप मुझे देवबंदी करके मुखातिब कीजिए। मैं देवबंदियों को अपना भाई नहीं कहता हूँ, मैं कैसे आपको भाई कह करके मुखातब करूंगा, ये बताइए ना। ठीक है, मुझे देवबंदी करके पुकारिए, आए मुझे देवबंदी करके पुकारिए, मुझे फख्र इस पर होता है। अच्छा, आपको इस पे फख्र होता है, लेकिन आपके और उलमा को फख्र नहीं होता, वो चिढ़ जाते हैं, इसलिए मैंने कहा आपको देवबंदी कह करके मुखातब ना करें। ना ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा देवबंदी कभी देवबंदी बोलने पर नहीं चिढ़ने का। नहीं, मैंने देखा बहुत से उलमा हैं। चलिए ये इधर उधर की बात करने से, हाँ ये बताइए कि क्या गुफ्तगू करनी है। चलिए मैं आपको 5 मिनट का वक्त देता हूँ, छोड़िए, बताइए क्या गुफ्तगू करनी है आपको। आप कुछ ये तहजीर साहब से कुछ मुतालबा कर रहे थे, किस बात से मुतालबा कर रहे थे? मैंने मुतालबा किया था मौलाना अहमद रजा की तकफीर का। अच्छा, आप अपने ये बताएं कि मौलाना अहमद रजा को आप क्या मानते हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं मौलाना अहमद रजा को काफिर मानता हूँ। ठीक है, ठीक। हमने कहा कि अच्छा, जो मौलाना अहमद रजा को मुसलमान मानेगा उस पर क्या हुक्म लगेगा। अच्छा, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं मौलाना अहमद रजा को, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं मुसलमान मानता हूँ, मेरे ऊपर कौन सा हुक्म लगेगा जी, आप बताइए जरा। आप मुसलमान समझते हो? हाँ, मैं मुसलमान मानता हूँ, तो मेरे ऊपर कौन सा हुक्म लगेगा। देखिए, मेरे ऊपर हुक्म बताइए ना, दिखाइए मत मोहतरम देवबंदी साहब, आप मुझे हुक्म बताइए ना, दिखाइए मत, मेरे ऊपर हुक्म बताइए तो फिर मैं बात करूँ ना। मेरे ऊपर हुक्म बताइए कि मेरे ऊपर हुक्म कौन सा नाफिज होगा। अगर मैं अच्छा, ये पहली बात तो ये करिए, चलिए मैं वो तहजीब साहब का मौक़िफ़ था, मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाहता हूँ। आप मौलाना अहमद रजा को मुसलमान जानते हैं या काफिर जानते हैं, पहले ये बताइए। मैं दुनिया का बदतरीन काफिर समझता हूँ। चलिए, आप बदतरीन काफिर समझते हैं, और अगर मैं उनको मुसलमान जानता हूँ तो मेरे ऊपर कौन सा हुक्म लगेगा। कुफ्र का। मेरे ऊपर कुफ्र का हुक्म लगेगा। अच्छा, ये कुफ्र का हुक्म जो है, अगर मैं ही अगर उनको मुसलमान मानूंगा तो मेरे ऊपर कुफ्र का हुक्म लगेगा, या अगर कोई देवबंदी जैद बकर कोई भी अगर उनको मुसलमान मानेगा उस पर भी कुफ्र का हुक्म लगेगा। तवज्जो से सुनिए मेरा जवाब। मेरी बात, मैंने जितनी बात आपसे हाँ ना करवा रहे, मैं अभी तवज्जो से सुनाइएगा, तब जब बात आपके मौलवी तक पहुंचेगी। पहले जैद बकर की बात करिए ना, अगर जैद बकर उनको कोई भी मुसलमान माने तो उसके ऊपर कुफ्र का हुक्म लगेगा या नहीं लगेगा, पहले ये बताइए। सुनो मेरी बात। अरे फिर वह सुना रहे हैं आप इधर उधर की बात क्यों, मैं इधर उधर चान ही नहीं दूंगा, पहले मेरी बात का जवाब आप सुनिए। मैं हुक्म लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ मोहतरम, इधर सुनिए। पहले ये बताइए ना कि जो आपने मेरे ऊपर कुफ्र का हुक्म लगाया, मुझ तक तो आपने कुफ्र का हुक्म लगाया एकदम जो है क्या बताऊं, ऐसे तमतराकी से कुफ्र का हुक्म लगा दिया। अरे चलो ये बरेलवी है तो मौलाना अहमद रजा को मुसलमान मानता है तो उसको काफिर कहने में क्या जाता है। आपने तो बिल्कुल तमतराकी के साथ कुफ्र का हुक्म लगा दिया। अब मैं जैद बकर की बात कर रहा हूँ, मैं तो किसी बरेलवी न देवबंदी, मैंने तो कोई नाम ही नहीं लिया। अगर उसको मौलाना अहमद रजा को, जिसको आप दुनिया का बदतरीन काफिर समझते, बदतरीन आप जिसको बता रहे कि वो बदतरीन काफिर है ना, तो ये बताइए कि अगर उस बदतरीन काफिर को, जिसको आप समझ रहे हैं, अगर उसको कोई मुसलमान मानता है, जैद बकर कोई हो, देवबंदी हो या बरेलवी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उसके ऊपर आपका क्या हुक्म नाफिज होगा, पहले ये बताइए मौलाना। आप उसके बाद जवाब सुनोगे? मैं जवाब पहले हुक्म तो बताओ ना, फिर जवाब सुनूंगा, पहले हुक्म तो बताओ आप। खुदा के बंदे, आप ही की बात की बात कर रहा हूँ, मेरे ऊपर तो मेरे ऊपर आपने कोई जवाब दिया, मेरे ऊपर तो आपने डायरेक्ट हुक्म लगाया ना कि आप भी काफिर हुए, आपने तो हुक्म लगाया ना, मेरे ऊपर कोई जवाब नहीं दिया ना। मेरे लगा रहा हूँ तो हुक्म, पहले हुक्म बताओ ना, मेरे ऊपर कोई जवाब लगा रहा हूँ। हाँ, हुक्म क्या है बताओ। आप सुनोगे? हुक्म लगा रहा हूँ, हुक्म बताओ। हाँ, हुक्म बताओ, आप सुनोगे? हाँ तो हुक्म बताओ ना भाई, मैं हुक्म तो सुनने के लिए तैयार हूँ। कुछ सुनेगा? अरे मैं तो सुन रहा हूँ, हुक्म बताओ ना भाई। खामोशी के साथ सुनो। हाँ। आपने ये कहा कि आपने अहमद रजा खान को ये लिखा बदतरीन काफिर, जो उसको मुसलमान समझे, वो कैसा है, यानी जैद बकर वगैरह कुछ भी हो, कोई भी हो, ठीक, इसके बारे में आपका क्या हुक्म है? मैं हुक्म लगा रहा हूँ। देखिए, अगर जैद को मालूम है कि उसकी इबारात ऐसी हैं और उसने पूरी तहकीक करने के बाद अगर उसने कुफर का फतवा न लगाया, पूरी तहकीक मुकम्मल तहकीक करने के बाद अगर कुफर का फतवा न लगाया तो उसकी गलती है। उसको चाहिए था कि अगर उसने तहकीक के बिना लगाया, कुफर का हुक्म नहीं लगाया तो गलती है कि काफिर होगा, क्योंकि उसको मालूम नहीं, तहकीक सुनो, तुम अपनी फिर बात वहीं आ गए ना मौली साहब। मेरी बात सुनो, जो आपने ये बात कही, पहले बात को समझो, आपसे मेरी बात हुई है, पहले मेरी बात सुनो मौली साहब। आप कह रहे हो कि गलती है, पहले बात को सुनो। जब कुफ्र वाज़े हो जाए, तहकीक के बाद कुफ्र वाज़े हो जाए और उसके बाद अगर कुफ्र का हुक्म नहीं लगाएगा तो गलती होगी या आदमी काफिर होगा?
देखो ना, उसका अपना मौकफ है ना, मौकफ उसका अपना है। अगर जब जाहिल की तरह बात करो, अगर कुफ्र वाज़े हो जाए, जब कुफ्र वाज़े हो जाए किसी भी आदमी पे, ज़ैद पे अगर कुफ्र वाज़े हो जाता है, तो अगर उस पे बकर कुफ्र का हुक्म नहीं लगाता है तो ये उसकी गलती है या क्या नाम है, बकर काफिर होगा? ये बताओ पहले। अगर उसको आप सुनो मेरा, अब यहाँ जैद बकर की बात कर रहे हैं आप, सुनिए जैद बकर की बात कर रहे हैं ना, अब जैद को सब मालूम हो गया। आप सुनो तोफैल सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि जैद ने तहकीक की बकर के बारे में कि बकर कि ये कुफर इबारत है, उसके बाद उस पर कुफर का फतवा नहीं लगाया, ठीक? तो ये उसका कुफर, देखिए उसका अपना मौकफ है। क्या मौकफ है? गलती है? नहीं मतलब उसको मौकफ है उसका अपना, वो कुफर का फतवा फिर क्यों नहीं लगा रहा है, उसका अपना मौकफ है। अगर उसको मुसलमान मानेगा तो वो क्या नाम है, मुसलमान रहेगा? कौन? अगर जैद का कुफ्र वाज़े हो जाए, बात को समझो मौलवी साहब, जैद का कुफ्र वाज़े हो जाए और बकर उसके बाद भी उसको उसके ऊपर कुफ्र का हुक्म न लगा करके उसको मुसलमान माने, तो क्या उसकी गलती होगी या बकर काफिर होगा? मैं कह रहा हूँ उसका अपना मौकफ है। फिर अपना मौकफ है, ये कौन सी जहालत की तरह बात कर रहे हो? मौकफ है। अभी मेरे ऊपर कुफ्र का हुक्म लगाया कि मौलाना अहमद रजा को अगर आप मुसलमान मानते हो तो कहते हो ना कि ये आपका मौकफ है। ये क्यों कह रहे हो कि तो आप भी काफिर हुए? अभी तो आपने कहा ना ये बात आपने कही अपने कॉल में। मैंने आपके घर की किताब से लगाया आप हुक्म, ये हुक्म मैंने आपके घर की किताब से लगाया। घर की किताब को आप अपने देखने से पहले अपने मौलवी की किताबों का मुताला करें मौलवी साहब। हमको क्यों ये करें? मेरे घर की किताब अभी बाद में देखिएगा ना, आप अपनी तहकीक बाद में पेश करिएगा। या तहकीक, अगर अपनी तहकीक को चलाना चाहते हैं तो उस तहकीक को वहां भी लेकर के जाइए, मौलवी थानवी के पास भी तहकीक लेकर के जाएंगे ना, जो मौलाना अहमद रजा बात कह रहे हो। मिस्टर तुफैल साहब, आप मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की मजाजुल हिकमा की बात कर रहे होंगे शायद, है ना? मैंने आपसे बात करी है, आपसे 3 दिन पहले बात हुई है, आपने मेरा नंबर ब्लॉक करके आप मुझसे भाग चुके हैं। मैं जानता हूं आप वही साहब बोल रहे हैं। और सुनिए, मैं वो कौन आप 3 दिन पहले, आप सुनिए, नाम तो आपने आप लोग की खानदानी ये पता नहीं क्या है कि आप लोग नाम बताने से भागते हो। 3 दिन पहले मेरी आपसे बात हुई है, आप लोग अपना व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे ब्लॉक करके आप भागे हो, समझ रहे हो बात को? और फिर मैंने वहां देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप कहीं पर भी ब्लॉक नहीं है और ना मुझसे आपकी गुफ्तगू हुई है। चलो ये बात तुम्हारी रिकॉर्ड हो रही है और वो बात भी तुम्हारी रिकॉर्ड हो चुकी है, पुरानी वाली बात भी रिकॉर्ड हो चुकी है। और वहां से भागे हो जहां से ना, उसके बाद भी तुमने सिर्फ अपने मौलवियों का फतवा दिया था कि मौलाना अहमद रजा की तकफीर के लिए तुमने न जाने कितने मौलवियों का अपना फतवा दिया था। लेकिन बाद में उसके बाद जब मैं बोलना चाहा तो तुमने जो है फोन कट करके तुम भाग लिए। अब सुनो मेरी बात को सुन लो गौर से। तुमको जितना बोलना था बोल लिए, ठीक है? तुम जो मजालिसुल हिकमा की बात कर रहे हो या अशरफुस सवानी की बात कर रहे हो या कससुल अकाबिर की बात कर रहे हो, किसी भी किताब की तुम बात कर रहे हो ना, जो मैं वो सारे हवाले तुमको पेश करूंगा। वो बात की चीज है, मैं तुमको हवाला देने से इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो तुम्हारे मौलवी कह रहे हो कि बगैर तहकीक के अगर मुसलमान माना है तब तो ठीक है। अच्छा चलो आगे की बात, एक बात और मैं पूछना चाहता हूं कि मौलाना अहमद रजा की तकफीर तो यहां तक तुमने कर दिया कि मौलाना वो तुम्हारे थानवी ने बगैर तहकीक के उनको मुसलमान माना है, ठीक है? यहां तक तो तुमने अपनी बात कह दी। अब आगे जरा गुफ्तगू करो तो इस रोशनी में मौलाना थानवी काफिर नहीं होते हैं। अब बताओ कि मौलाना अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला वरदहु अन्ना जब इंतकाल कर गए तो मौलवी थानवी जो है दुआए मग़फ़िरत क्यों किया मौलाना अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी के लिए? इसका हवाला मैं तुमको दे रहा हूं। तो ये बताओ कि किसी काफिर के लिए दुआए मग़फ़िरत करना कैसा है, ये बता दो, फिर मैं तुमसे बात कर रहा हूं, बताओ। जी मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। मैं दलील दे रहा हूं, मैं बगैर दलील के कोई बरेलवी बगैर दलील के बात नहीं करता। मौलाना तुम्हारे, मुझे पता है बरेलियों के पास कितनी दलीलें होती हैं। आप जवाब सुनो इसका। तुमने कुफ्र सुनो, तुम्हारे एक मौलवी जो ये तहजीब जो लाइन पे है ना, तुम्हारे मौलवी साहब, इन्होंने क्या नाम है एक फतवा भेजा है, जरा मुझको मैं उसके बारे में जरा वाजे कर दूं। अभी रुक जाओ मैं वाजे कर दूं। इसी देवबंदियों को तो भागने सुनो भागो मत, मेरे नमाज का वक्त हो रहा है, भागो मत, सुन लो पहले मेरी बात सुन लो, भागो मत। तुम्हें भागने मैंने एक बात को सुन ले, पहले कान खोल कर सुन ले। देवबंदी भागता नहीं, भगाता है। जदीद नुस्खा है जिसमें तुम लोगों ने खल्त मल्त किया है। कदीम नुस्खा भेजो, चाहे इमदादुल फतावा का जो कदीम नुस्खा है उसको भेजो और उसमें मौलाना अहमद रजा की तकफीर साबित करो। उसमें अपने मौलवियों के नजदीक मौलाना अहमद रजा की तकफीर साबित करो। ये तुम्हारे क्या नाम है, देखो एक मिनट, हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब कुदस
इसमें क्या लिखा है, बेतरतीब जदीद, इसमें क्या लिखा है, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमहुल्लाह। तो ये इसके जदीद नुस्खे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पुराने कदीम नुस्खे में मौलाना अहमद रजा की तकफीर साबित करो, और उसके बाद तुम अपने मौलवी की, किसी भी मौलवी की किताब से जो मौलाना अहमद रजा की तकफीर करते हो, वो कदीम नुस्खे में तुम्हारे अकाबिर अरबा है, गंगोही, नानोतवी और सुनो थानवी और क्या नाम है, खलील अहमद सहारनपुरी, ये चारों जो तुम्हारे अकाबिर अरबा है ना, उनकी किताब से कदीम नुस्खे से मौलाना अहमद रजा की तकफीर साबित करो, तब तो तुम्हारा काफिर कहना बजा होगा। वरना तुमने एक मुसलमान को काफिर कह करके हदीस शरीफ की रोशनी में तुमने कुफ्र अपनी तरफ पलटा लिया। अब लिहाजा तुम तौबा करो, तुम एक मुसलमान को काफिर कह करके दुनिया के बदतरीन काफिरों में से तुम एक हो गए। चलो बताओ, अब आप मेरा जवाब सुनोगे? हाँ बोलो। सबसे पहले तो आपने ये कहा कि आप अपनी किताबों से साबित करो, ठीक है मैं साबित करता हूँ, आप घबराएं ना। आपने इमदादुल फतावा की बात की तो मैं इमदादुल फतावा की भी बात करूंगा, सवाल हजरत की बात की उसकी भी बात करूंगा, सबकी बात करूंगा इंशाल्लाह, एक एक का जवाब दूंगा। ठीक है, आपसे मेरा एक सवाल है, पहले मेरे सवाल गौर से सुनिएगा। हाँ चलो। क्या पहले मेरी बात गौर से सुनिए। क्या अहमद रजा खान, बोलो मैं सुन रहा हूँ। मैंने कहा ना 5 मिनट का वक्त मैं तुमको दिया, मैंने कहा ना, जबकि मैंने वक्त निकाला था, अहमद रजा बाद में बात करूंगा। अब सुनो ना, अब आप बोलने नहीं दोगे। हाँ चलो बोलो। अब आप बोलने नहीं दो रहे हो। चलो मैं सुन रहा हूँ, बोलो तो। क्या अहमद रजा खान बरेलवी अपने तस्नीफात, अपनी इबारात और अपने हम मसलक मौलियों के इबारात की रोशनी में आपके नजदीक काफिर है या मुसलमान? हम मसलक मौलवियों के पास फिर गए पुरानी बातों की तरफ। 3 दिन पहले जो तुमने बात कही थी पुराने मौलवियों की तरफ, हम मसलक, हमारे मसलक के तुम पहले तुम अपने घर की खबर लो ना, क्योंकि तुम हम मसलक की बात करो, हमारे मौलवियों मैं सुनिए जवाब सुन, आप मुझे बोलने नहीं दो। अपने मौलवी के नजदीक मौलाना अहमद रजा की तकफीर साबित कर। तू मेरे घर की बात मत कर, मेरे घर में क्या है मैं कह रहा हूँ ना, मैं साबित करता हूँ। हेलो तो फिर मैं साबित करता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। साबित कर लोगे तब तुम्हें ये हुज्जत मेरे लिए बनाना पड़ेगी कि तुम अपने घर की किताब देखो। मेरे लिए तब तक तुम्हारी ये बात हुज्जत हो ही नहीं सकती है जब तक तुम अपने घर से मौलाना अहमद रजा जवाब सुनोगे मेरा? हेलो तुफैल, बात सुनोगे? हाँ चलो। मेरा आपने अभी बात सुनी नहीं पूरी, आप बीच में चिल्लाने लगे, जहालत मत दिखाइए, जवाब सुनिए गौर से। उर्दू सही से बोलो, मेरा बात नहीं मेरी बात, उर्दू सही से बोलो। उर्दू बोलने नहीं आता है यार, तुम बहस करने चलो बोलो। आप सुनिए, मैं बिहारी नहीं बोलता हूँ, जम्मू कश्मीर का हूँ, ठीक है? बात मुअन्नस है ना कि मुज़क्कर है? मेरा बात होता है कि मेरी बात होती है? उर्दू सही से बोलो, उर्दू बोलने नहीं आता है। बिहारी नहीं हूँ मैं, जम्मू कश्मीर का। सुनिए, हेलो तो फिर सुनिएगा। अब मैंने आपको मेरे सवाल सुनिए, गौर से सुनिए, मेरा मुकम्मल होने दीजिए, मेरा सवाल के बाद बात कीजिए। चलो। क्या आपके मौलवी अहमद रजा खान अपनी तस्नीफात और अपने मसलक मुसन्निफों की तस्नीफात मुसलमान, अगर वहाँ पर आप मुसलमान, अगर वहाँ पर मुसलमान है, अरे सुनिए, अरे तो फिर सुनिए, अगर वहाँ पर आपको मुसलमान मिलता है तो फिर हमारी किताबों के अंदर आप अहमद रजा खान मुसलमान क्यों ढूंढते हो? इसका मतलब यही हुआ ना कि आपको अपनी किताबों के अंदर साफ अहमद रजा खान बरेलवी काफी नजर आता है, और आप अब हमारी किताबों के अंदर मुसलमान होने को ढूंढ रहे हो उसको। क्यों तुम्हारे मौलवियों ने घुटने टेक करके माना अहमद रजा को मुसलमान माना? मैं क्यों? कोई तुम्हारे 3 तुम्हारा वो क्या नाम है दारुल उलूम, वो फतावा जो क्या नाम है दारुल उलूम देवबंद का जो फतावा निकलता है, उस फतवे में जो है क्या नाम है मौलाना अहमद रजा को मुसलमान माना है तुम्हारे मौलवियों ने। तुम मुझको क्यों, तुम्हारे मौलवी घुटने टेक के मुसलमान मान रहे हैं? अरे हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको आशिक़े रसूल मानते हैं। अरे हमारी तो बात छोड़ो, तुम अपने मौलवियों से जाओ, पूछो ना, जाओ मौलवी थानवी की कब्र से उठा करके पूछो कि तुमने क्यों मौलाना अहमद रजा को मुसलमान कह दिया है, वो हमारे लिए हमारे जान के पीछे बरेलवी पड़ गए। जाना पूछो ना थानवी से, मुझसे क्यों कह रहे हो? अच्छा सुनिए, तुम मौलाना अहमद रजा का कुफ्र साबित कर दो, फिर रिजवी ज्यादा बोलना ये आपकी जहालत है। मेरा जवाब सुनिए। ज्यादा बोलना नहीं, मौजू पे बात करना, ये मालूम है मौजू पे बात करने की हमारी आदत है। मौजू पे गुफ्तगू कर रहा हूँ ना, मेरी बात सुनिए ना, आप मेरी बात सुन क्यों रहे हैं? हमारा मौलवी साहब से पूछो, यही था हमारा मौजू ही कि मौलाना अहमद रजा आप बात सुनेंगे। हेलो देवबंद की रोशनी में भी है, ये मेरा मौजू। रिजवी बात सुनो, अरे मेरा जाहिले मुतलक गदहुल नबी घामड़, मेरा मौजू यही था
کہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی وردہ عنہ کیا اکابر تھانوی ہے، لعنت اللہ علیہ تو مولانا تھانوی ہے. میرا موضوع ہی یہی تھا کہ مولانا احمد رضا خان کیا اکابر دیوبند کے نزدیک بھی کافر ہے، یہ میرا موضوع تھا. تو اس پہ تم بات کرو گے، نہ کہ تم ہمارے گھر کی کتاب کو تم حوالہ بناؤ. میں کہہ رہا ہوں سنے گا نہیں تو سنے گا نہیں. میں کیوں سنوں گا جب میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ جس نے تحقیق کی اس نے کافر قرار دیا. اور سنیے تم اپنے آپ کہہ رہے ہو کہ کافر کیوں نہیں کرا. اللہ تو فیل رضوی بات سنیے، تو فیل رضوی بات سنیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اکابر نے کافر نہیں کہا. میں آپ کو اپنے 20 اکابر کا حوالہ دوں گا جن نے کافر کہا. یاد رکھیے دے چکے ہیں، لیکن کوئی بھی حوالہ جدید قدیم نسخے سے نہیں، سب جدید نسخے سے دیے ہو. اور تم اپنے سنو، تمہارے اکابر ارباب، پہلی بات تو سن لو کہ یہ ان چار آپ سنیے نا. توفیل رضوی ہلو، توفیل رضوی بات سنو نا. ہلو توفیل رضوی، ہلو توفیل رضوی بات سنو یار. ہلو بولو نا، سن رہا ہوں. آپ بات کیوں نہیں سنتے؟ پہلے بات سنو. میں نے کہا کہ میں اپنے اکابر کی روشنی میں 20 اکابر کی. ارے سن تو صحیح. ارے ہو توفیل رضوی، ہلو توفیل رضوی تجھے مرچی کیوں لگ رہی ہے؟ توفیل رضوی تم سے مرچی کیوں لگ رہی ہے؟ تو سنتے کیوں نہیں ہے؟ گھر جاؤ گے تو میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، اس لیے کہ موضوع ہی نہیں ہے میرے گھر کا. موضوع تمہارے میں تیرے گھر نہیں جاؤں گا. مجھے پتا ہے کہ تیرا گھر گند سے بھرا ہے. میں وہاں نہیں جاؤں گا. میں اپنی کتابوں سے حوالے دوں گا. اے مولوی صاحب، شیشے کے گھر میں بیٹھ کر کے پتھر نہ پھینکیے. ارے بات سن توفیل رضوی، کان کھول کر بات سن. مجھے تجھے کہہ رہا ہوں. ہلو توفیل رضوی شور مت کر. شیشے کا بدل لیے ہو مولوی صاحب. شیشے کے گھر میں بیٹھ کر کے میں نے کہا نا پتھر نہ پھینکیے. شیشے کے گھر میں بیٹھ کر کے پتھر. ارے توفیل رضوی میں تجھے کہہ رہا ہوں. توفیل رضوی بات سنیے. توفیل رضوی ادھر کی بات میں نہیں کرنے دوں گا. آپ اپنے گھر سے مولانا احمد رضا کی تکفیر کرو. اور سنو، اور تمہارے گھر کی جو اکابر علماء جو تمہارے وہ 4 مولوی ہے نا، جو کیا نام ہے 4 مولوی جو ہے، ان کے نزدیک تم مولانا احمد رضا کی تکفیر ثابت کرو. اس کے بعد کے کسی مولوی کے نزدیک مولانا احمد رضا کا کفر جو وہ میری ذمہ داری ہے. میں چاروں کا ان چاروں کا بھی دکھاؤں گا. ہلو توفیل رضوی ان چاروں نے کافر مشرک قرار دیا ہے. مشرک قرار دیا ہے ان چاروں نے. حجت ہوگی. بات کے کسی مولوی کو سنو، بات کے کسی مولوی کا کفر جو ہے میرے لیے بتا دو کہ مولانا احمد رضا کو ہمارے ان مولوی نے، یا کون چاندپوری ہے، کون چاندپوری ہے، ان کی وہ بات نہیں مانی جائے گی. مانی جائے گی یہ 4 مولویوں کی بات. ارے توفیل تو بات سنے گا. ہلو توفیل میں سن رہا ہوں، ساری بات سن رہا ہوں. میں تم کو پھر وہی بات کہہ رہا ہوں، میں تم کو ادھر ادھر جانے ہی نہیں دوں گا. ہاں چلو بولو. تو میں ادھر ادھر کبھی نہیں جانے کا. میری بات سن. میں اپنے اکابر، اب ہم مسلک کی بات کر رہے تھے تو میں ارے تیرا گھر گند سے بھرا ہے. وہاں جا کر کیا کروں؟ میں نے کہا نا شیشے کا بدل لے کر کے پتھر نہ پھینکو مولوی صاحب. ابھی جب ادھر سے پتھر پہلے گند سے بھرا ہوا ہے تو میں وہاں کیوں جاؤں؟ ارے توفیل رضوی تیرا گھر گند سے بھرا ہے، میں وہاں کیوں جاؤں؟ تو میری بات کیوں نہیں سنتا ہے؟ ہم کو لگ رہا ہے کہ آپ مولانا نہیں جاہل ہو. ہم کو تو یہ لگ رہا ہے کہ جاہل مطلق. الحمدللہ. ارے توفیل رضوی الحمدللہ. توفیل رضوی الحمدللہ تو کافر ثابت ہوا. اپنے ہی احمد رضا خان کے فتوے کے مطابق تو کافر ہو گیا ہے. کیونکہ تو نے تیرے نظر میں کافر ہے نا، تو نے مجھے مولانا کہا اور تو کافر ہو گیا ہے. ہم نے کہا نا مولانا اس معنی میں کہا اب جاہل، اسی لیے کہتے ہیں جاہل مطلق. تم لوگ الحمدللہ تو اپنے ہی فتوے کے مطابق کافر ہو گیا. مصنف کے مصنف کے مطابق بھی تو کافر ہو گیا. نعیم کے مطابق نعیم رضا خناسی کے قول کے مطابق فتوے کے مطابق تو کافر ہو گیا. فتاوی رضوی کے مطابق تو کافر ہو گیا. تم جاہل ہو گئے نا. مولانا ہوئی نہیں تو تم جاہل ہو. مولانا ہوئی نہیں تم مولانا ہوئی نہیں. اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ مجھے مولانا کہا تم. ہاں تو میں نے کہا تم مولانا ہوئی نہیں. میں نے کہا یہ کہا نا کہ نہیں. تم نے اس سے پہلے کئی مرتبہ مولانا کہا اور تم نے مولانا اشرف علی تھانوی کہا اور تم نے مولانا اشرف علی تھانوی کہا. مدرسے میں گندگی بھی کہا. ارے رضا خناسی کان کھول کر سن لو. ارے رضا خناسی کان کھول کر سن لو. میں تو تجھے مولانا مانتا ہی نہیں. تو اسی میں اگر میں تجھ کو مولانا تسلیم کر دوں تو میں تجھ کو اگر مولانا تسلیم کر لوں گا تو ویسے ہی میرے اوپر کفر کا حکم لوٹ آئے گا. یہ تو ایک دم اپنے ذہن سے نکال دے. تو جاہل ہے. میں تو تجھ کو پہلے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تو جاہل ہے. اچھا ٹھیک ہے. رضا خناسی کان کھول کر سننا. اب سن. ہلو توفیل رضوی کان کھول کر سن. شور مت کر زیادہ. یہ جہالت ہے. تو اپنے گھر سے مولانا احمد رضا کا کفر ثابت. ارے سن تو صحیح. ارے جاہل سن تو صحیح. ارے ہم کو کیوں جاہل؟ تم مجہل ہو. اور کیا ہو تم؟ کیونکہ سن ہی نہیں رہے تم. ہم سنیں گے. چلو سنا.
मैं कह रहा हूँ मैं अपने 20 अकाबिर की रोशनी के अंदर अहमद रजा खान को काफिर साबित करूंगा। नहीं मानेंगे, 20 की तो हम मानेंगे नहीं, 4 की बात करो। 4 के बाद मैं उन 4 की सुनिए, अच्छा 20 के नहीं मानोगे, तुम्हारा जो 20 कम 4 ज्यादा है, उनके बाद मैं किसी का कुफ्र तस्लीम ही नहीं करूंगा। तुम्हारे अकाबिर अरबा जो अच्छा ठीक है। सुन लो अहमद, हेलो तो फेल, हेलो तो फेल, हेलो तो फेल, हेलो तो फेल, अरे हेलो तो फेल, मैं तुम्हें सुन रहा, मैं सुन चुका हूँ। हेलो तो फेल, मैं तुम्हारी जहालत है तेरी, मैं मुनाजरा नहीं हेलो तो फेल, ये तेरी जहालत है, हेलो तो फेल, अपनी जहालत से बाहर आ जा, हेलो तो फेल। मौलाना थानवी और क्या वो मौलवी क्या नाम है नानोतवी और क्या नाम है उसका खलील अहमद सहारनपुरी, ये 4 मौलवियों के नजदीक मौलाना अहमद रजा को काफिर साबित करो नंबर 1, और वो भी कदीम नुस्खे से, जदीद नुस्खे से साबित करोगे, वो हमारे लिए हुज्जत नहीं होगी किताब। सुन लो मेरी बात, हमारे लिए कदीम नुस्खा जो तुम्हारे घर का पुराने वो कदीम पुरानी किताबों में जो ये मौलाना अहमद रजा की तकफीर साबित करोगे, तब तो हम उनकी तकफीर के कायल होंगे तुम्हारी किताब के। ऐसे हम नहीं मानेंगे तुम्हारे, तुम अगर जदीद नुस्खा पेश कर दोगे तो हम नहीं मान सकते हैं। और सुन, तुम्हारे किसी मौलवी ने, मैं तुमको कह रहा हूं कि पूरे देवबंदियत को मैं चैलेंज करता हूं कि वो अपने कदीम नुस्खे से अगर मौलाना अहमद रजा को काफिर साबित कर दिया तो चल, अच्छा ठीक है, मैं अपना मजहब चेंज कर दूंगा। तू बता तू क्या कर लेगा? चल तू बता। आपने बात बोल दी, कदीम नुस्खे से साबित करेगा, और वो भी अकाबिर अरबा। फिर हाँ लेकिन हेलो मौलवियों की बात नहीं मानी जाएगी। अकाबिर अरबा जो तुम्हारे 4 मौलवी हैं उनके नजदीक। चलो, अरे खुदा के बंदे तू सुनेगा कि नहीं? चल अगर तूने बीच में अब बोला तो मैं तुझे जाहिल ठहरा दूंगा, याद रख। जाहिल तू, तेरे ठहरा, मैंने तेरी बात गौर से सुनी। तू तो जाहिल हो चुका है। चलिए यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग जाएगी वो। हाँ वो तो मालूम हो रहा है कि कौन जाहिल है, तो जब बात ही नहीं सुनता है। अरे जाहिल का काम होता है स्टोर करना। बयान कर। सुनिए, आप कह रहे हो कि मैं 4 की बात मानूंगा, 20 की नहीं मानूंगा। एक बात तवज्जो से सुनना, 20 की नहीं, उसके बाद की बात नहीं मानूंगा। अच्छा सुनिए ना, आप कह रहे हो कि अकाबिर अरबा की बात कर रही है आप, ठीक है। मेरे लिए वही 4 अकाबिर नहीं है। सबसे पहले आप इस बात को आप भूल जाइए कि मेरे लिए सिर्फ वो 4 अकाबिर नहीं है। मेरे अरे सुन यार, जाहिल कहेगा, पता नहीं कहाँ सोच के आया, जाहिल कहेगा। अरे मैं कह रहा हूँ बात सुन, उनसे पहले क्या अकाबिर तुम्हारे, उनसे पहले क्या अगर कोई और अकाबिर है तो उनके नजदीक मौलाना अहमद रजा की तकफीर साबित कर, उसके बाद क्या? अरे तो कितना बड़ा जहील आदमी है, तो कितना बड़ा जहील आदमी है, तो सुनते क्यों नहीं है? मौलवी देवबंदी, उसके बाद के मौलवियों की मतलब हम तुमको जो तुम्हारे ऊपर हुज्जत बनाते हैं। तू एक किताब अभी नई किताब लिख दे, तेरे 10 साल के बाद कोई मौलवी कहेगा कि ये भी हमारे अकाबिर थे, मौलवी अहमद रजा को काफिर कहते थे, तो हम उसको मान लेंगे? कैसी बुद्धि हालत कर रहा है? अरे तो बात सुन, हेलो तो बात सुन मेरी। हाँ बोलना। रिजवी तो बात सुन मेरी, कान खोल कर। मेरे अकाबिर में से अगर किसी एक ने भी अहमद रजा खान को अगर काफिर न कहा हो, मैं जुर्रत के साथ कहता हूँ अहमद रजा खान काफिर है। 4 के बाद वाले में नहीं मानूंगा, वो भी पुराने। मैंने कह रहा हूँ बार मानेगा तो क्यों नहीं मानेगा? तुझे पता है कि तेरा अहमद रजा खान काफिर है, तो इसलिए नहीं मान रहा है। हुज्जत इसलिए कि उनमें से एक थानवी जी हैं, जो सुनो, उनमें से एक थानवी जी हैं जिन्होंने मौलाना अहमद रजा को मुसलमान माना। तो तूने ये कहा कि उन्होंने बगैर तहकीक के मुसलमान माना। पहले अपनी बात को सुन ले, गौर से बात को सुनेगा जब तुम्हें समझ में आएगी। तुमने ये कहा कि उन्होंने बगैर तहकीक, उनके सामने तहकीक वाज़े नहीं थी, ठीक है, इसलिए उन्होंने मुसलमान माना। तुमने फिर ये कहा कि अरे बात तो सुन, पहले बात तो सुन, फिर मुझे बोलने नहीं देता। तू ये कह रहा है कि उनके सामने तहकीक वाज़े नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कि अगरचे वो हमें काफिर कहते हैं, हम उन्हें काफिर नहीं कहते। पहले बात सुन, पूरी हो जाने दे। फिर उसके बाद तूने कहा कि मौलाना थानवी ने बाद में कुफ्र का हुक्म लगाया, जैसा कि तुमने इमदादुल फतावा भेजा, ये जदीद नुस्खा। अब बता बेटा कि ये चल, हम इसी को थोड़ी देर के लिए, तुम्हारे बकौल हम इसको अगर हुज्जत मानते हैं थोड़ी देर के लिए, तो बेटा ये बता कि जब मौलाना थानवी, सुन, मौलाना थानवी ने जब काफिर मान ही लिया था, कुफ्र का हुक्म लगा दिया था इमदादुल फतावा में, तो उनके इंतकाल के बाद दुआए मग़फ़िरत किस लिए की? काफिर के लिए दुआए मग़फ़िरत की जाती है, जाहिल मुतलक। बता, दुआए मग़फ़िरत की मौलाना अहमद रजा के इंतकाल के बाद मौलवी थानवी ने दुआ, मैं बताता हूँ, फिर मौलवी जवाब सुन इसका जो हेलो तो रिजवी, चल बोल। चिल्लाना नहीं, सुन मेरी बात। तो कह रहे हैं अहमद रजा खान को, हमने कहा ना कि तुम्हारे घर की अरे तू जाहिल मुतलक कहेगा, पता नहीं कहाँ तू क्या है। बात सुनना यार। अरे देखो भाई, ये कैसा जाहिल है, ये कैसा मौलवी जाहिल है। मैं तो ये बात ही नहीं समझ में आती है कि अब तक ये अपना दावा साबित नहीं कर पाया। जो उसने दावा किया कि मौलाना अहमद रजा हमारे अकाबिर के नजदीक काफिर है, इसने अपना दावा साबित नहीं कर पाया। और ये मौलवी जो है, हमको जो हमारे
दावा तुफैल साबित रिजवी कर रहे जाहिल, हैं। फिर उसके बाद ओ तुफैल रिजवी जाहिल, ओ तुफैल रिजवी जाहिल, कान खोल कर सुन ले। अगर तुझमें हिम्मत होती ना तो तू हमारी किताबों के अंदर अहमद रजा खान को मुसलमान न ढूंढता। तुझे ये सब कुछ मालूम है कि तेरी किताबों से तेरा अहमद रजा खान काफिर है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, तुमसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर मौलाना अहमद रजा को मैं मुसलमान मानता हूँ तो मेरे ऊपर कुफ्र का हुक्म लगाता है, और अगर थानवी जी जो है दुआए मगफिरत कर रहे हैं तो उनके ऊपर थानवी ने 2-3 जगह पर काफिर करार दिया। थानवी ने ये भी कहा है, सुन, अरे सुन तेरी किताब, अरे तेरी सुन, अरे रजा खन्नास सुन, कान खोल कर सुन। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ तक लिखा रेलवे के अंदर एक भी हकीकी मुसलमान नहीं है। सुन, कुफ्र का हुक्म लगा दिया था तो फिर दुआए मगफिरत क्यों किए? मुन्ना जरा बताना, इसका दुआए मगफिरत करना, काफिर के लिए दुआए मगफिरत करना कैसा है, जरा ये भी बता दे बेटा। ये कहाँ पर लिखा है, दिखा, हवाला दे। मैं हवाला, तो ये कहना कि तू हवाला दे, मैं हवाला देने से अगर भागूंगा तब ना, तू हवाला मुझसे मांगना, मैं हवाला देता हूँ, मैं हवाला देता हूँ। अच्छा चल, अगर ये हवाला दे दिया तो अपने मौलवी थानवी को काफिर मानेगा ना? बोलना। कभी नहीं, अभी भी काफिर नहीं मानेगा? कभी नहीं मानूंगा। इसका मतलब ये साबित हो गया कि तुम मुझसे मुनाजरा करने के लिए बैठा ही नहीं। चल अब बात साबित हो गई। चल अब ठीक, मेरे पास वक्त नहीं है, मैंने तुझको 5 मिनट दिया था, 27 मिनट 15 साबित नहीं कर, अपना दावा साबित नहीं कर पाएगा। 5 नहीं, जैसा मैंने अरे रजा खन्नासी भाग ले, तेरे बच्ची की बात नहीं। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की 4 जगह में इबारत दिखाऊंगा जहाँ पर अहमद रजा खान को